Hello dear students, welcome on my channel. Today there are very interesting questions and very important questions. Now see question number 24. If 2 raised to x equals 3 raised to y equals 6 raised to minus z, prove that 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z equal to 0. So it is given that a relation between 2, 3 and 6 and their indices in terms of x, y and z. So see once again what is the given relation. 2 raised to x equal to 3 raised to y equal to 6 raised to minus z. This is the given relation in the question and you have to prove that 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z equal to 0 with the help of this relation. So first for the proof we consider means here let 2 raised to x equals 3 raised to y equal to 6 raised to minus z equal to k, where k is a non-zero constant. Now 2 raised to x equal to 3 raised to y equal to 6 raised to minus z equal to k means 2 raised to x equal to k, 3 raised to y equal to k and 6 raised to minus z equal to k. Now 2 raised to x equal to k, therefore 2 equals k raised to 1 upon x. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर है 2 raised to x. You can say taking xth root on both sides, we get 2 equals k raised to 1 upon x. ठीक है? Otherwise, you can say taking power 1 upon x on both the sides, therefore 2 raised to x whole raised to 1 upon x. So x will be cancelled, only 2 will be remaining. And here k raised to 1 by x as it is. So you can say 2 equals k raised to 1 upon x. Now 3 raised to y equal to k, same format here. Therefore 3 equals k raised to 1 upon y. And last term 6 raised to minus z equals k, therefore 6 equals k raised to minus 1 upon z. ठीक है, तो ऑल द थ्री सिमिलर फॉर्मेट में किए गए. जैसे हमने यहाँ पर टेकिंग होल रेज टू 1 अपॉन एक्स ऑन बोथ द साइड्स कर सकते हो. सिमिलरली टेकिंग पावर 1 upon y on both the sides. Also here taking power minus 1 upon z on both the sides. So we get 2 equal to k raised to 1 upon x, 3 equals k raised to 1 upon y and 6 equals k raised to minus 1 upon z. अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो 6 equals k raised to minus 1 upon z. Now factorize 6 means find the prime factors of 6. तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर, देखो यहाँ 2 एंड 3, 2 into 3 becomes 6. तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 2 एंड 3 एरो करके मैंने यहाँ पर समझा दिया है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स के रेज टू माइनस 1 अपॉन z. क्योंकि देखो 6 इक्वल टू के रेज टू माइनस 1 अपॉन z, देयरफॉर 2 into 3 इक्वल्स के रेज टू माइनस 1 अपॉन z. अब क्या करना है उसको देखो. अब हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने हैं वैल्यूज. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2? देखो 2 इक्वल टू के रेज टू 1 अपॉन एक्स, तो दिस इज 2. तो 2 इक्वल टू के रेज टू 1 अपॉन एक्स, ये वैल्यू कहाँ से आई? फ्रॉम हियर. ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 2 के लिए. नाउ 3 इक्वल्स फ्रॉम हियर, 3 इक्वल टू के रेज टू 1 अपॉन वाई. सो वी राइट instead of 3 we write here k raised to 1 upon y equals k raised to minus 1 upon z. Now here bases are same, so according to the indices property, k raised to 1 upon x plus 1 upon y equals k raised to minus 1 upon z. Now we see that bases are same on both the sides, so their indices must be equal. Therefore 1 upon x plus 1 upon y equals minus 1 upon z. Taking minus 1 upon z to the left hand side, we get 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z equal to 0. So dear student,
अगर एक बार और इसको वापस रिवाइज करना है, इफ यू वांट टू रिवीजन फॉर दिस क्वेश्चन, so now start from proof. Let 2 raised to x equal to 3 raised to y equal to 6 raised to minus z equal to k. Therefore, 2 raised to x equal to k, 3 raised to y equal to k, and 6 raised to minus z equal to k. That is 2 equal to k raised to 1 upon x, and 3 equals k raised to 1 upon y, and 6 equals k raised to minus 1 upon z, according to indices rule. Now, prime factors of 6 are 2 and 3. So, 2 into 3 equal to k raised to minus 1 upon z. But value of 2 is k raised to 1 by x from here, and value of 3 is k raised to 1 upon y from here. So we substitute the values k raised to 1 upon x multiplied by k raised to 1 upon y equal to k raised to minus 1 upon z. Now we multiply here, that is add the power, so k raised to 1 upon x plus 1 upon y equals k raised to minus 1 upon z. Now bases are same on both the sides, so we compare the powers, that is indices must be same. Therefore, 1 upon x plus 1 upon y equals minus 1 upon z, that is 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z equal to 0, hence proved. Now see question number 25th. If 2 raised to x equals 3 raised to y equals 12 raised to z, prove that x equal to 2yz upon y minus z. Here it is given that a relation between 2, 3 and 12, and their indices are xi and xy and z respectively. We have to prove that x equals 2iz upon y minus z. For the proof, let 2 raised to x equal to 3 raised to y equal to 12 raised to z equal to k. Therefore, it can be written as 2 raised to x equal to k, 3 raised to y equal to k, and 12 raised to z equal to k. From here, 2 raised to x equals k, and 3 raised to y equals k, 12 raised to z equals k. Okay, so we have three different terms which are equal to k. Now, what should we do after these three separated terms? Since prime factors of 12 are 2 into 2 into 3. What are the prime factors? 2 into 2 into 3. So 2 into 2, that is 2 square, into 3 equals k raised to 1 upon z. Here 2 square, that is 4, 4 into 3 equal to k raised to 1 upon z. So, but value of 2, what is the value of 2 from here? 2 equals k raised to 1 upon x. So, we write here k raised to 1 upon x whole square multiplied by value of 3, that is k raised to 1 upon y. So, k raised to 1 upon y equals k raised to 1 upon z. Now, k raised to 1 by x whole square becomes k raised to 2 upon x into k raised to 1 upon y equals k raised to 1 upon z. Now, adding these two terms we get. So, adding the powers here, multiplying, so bases are same. So, k raised to 2 upon x plus 1 upon y according to indices property, or you can say like as previous question. So, 2 upon x plus 1 upon y becomes 1 upon z. Therefore, 2 upon x equals 1 upon z minus 1 upon y. That is 2 upon x equals, here y into 1, that is y, z into 1 minus z upon z into y, that is yz. So 2 upon x equals y minus z upon yz. This implies that x equals 2yz upon y minus z, hence proved. Now you can check next question easily. So in today's lecture, all these questions are very important questions for the competitive exams and for the higher classes also. So you should clear your basic things for the higher standards and continue for the 9th standard also. Now in question number 26, what is given? Simplify and express with positive exponents. It is very simple, but solve by carefully. Simplify and express the with positive exponent. Simplify and express with positive exponent means what? You have to write your answer in terms of positive exponents or positive numbers. So they may be in fraction or maybe in integers. Your first question is 3x square whole raised to 0. As you know very well,
x raised to 0 1, 3 raised to 0 is also 1, so x square whole raised to 0 is 1. That is 3x is square, 3x square whole raised to 0 becomes 1. Now xy whole raised to minus 2 can be written as 1 upon x square into y square. Or you can say 1 upon xy whole square, that is 1 upon x square into y square. And your third question, minus 27 a raised to 9 whole raised to 2 by 3. So minus 27 is what? Minus 27 can be written as minus 3 whole cube. But entire power is 2 by 3. So taking whole raised to 2 upon 3. So this will be minus 3 whole cube, that is minus 27. Here whole raised to 2 upon 3. A raised to 9 as it is whole raised to 2 upon 3. Now 3 into 2 by 3, that is 3 going by 3. So we get here minus 3 square only. So minus 3 square becomes minus 3 into minus 3, that is 9, or you can say plus 9. Here a raised to 9 whole raised to 2 by 3. So here 3 3s are 9 and 3 2s are 6. So a raised to 6. That is final answer is 9 into a raised to 6. Clear? So all these three answers are very simple. You can convert easily in positive exponents. Now see next question, question number 27th. If a equal to 3, if a equal to 3 and b equal to minus 2, find the values of. अब यहां पर देखो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 2, तो यहां पर मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड किया है, एडिशनल. तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक, बट यू शुड प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन ऑल्सो. Then find the values of a square plus b square. So we should substitute the value of a here. We get 3 square. For b square, we should substitute the value for b minus 2, that is minus 2 square. So we see that here 3 square plus minus 2 square becomes 9 plus 4 equal to 13. Now your textual question, a raised to a plus b raised to b, तो यहां पर हमने इसको सेकंड क्वेश्चन बना दिया है. a raised to a plus b raised to b equals, what is the value of a? Value of a is 3 raised to 3 because it is a to the power a, that is here 3 to the power 3. So 3 cube plus value of b, it is minus 2. Here we have to write b raised to b, that is minus 2 raised to minus 2. Now we simplify these terms. Here it is 3 cube. So 3 cube, that is 3 into 3 into 3 becomes 27, and minus 2 whole raised to minus 2 is what? It is equal to 1 upon minus 2 whole square. 1 upon minus 2 whole square becomes 1 upon 4. So this will be 27 into 4 plus 1 becomes 27 is to 1 upon 4, or 27 and 1 upon 4. So this is the first answer here from the textbook. Now textbook में ये second question है, यहाँ पर third question होगा because one question is extra given here. So third one is a raised to b. Find the value of a raised to b plus b raised to a. अब यहाँ देखो इंटरचेंज हो गए पावर्स. यहाँ पर क्या था, a to the power a plus b to the power b. So its answer becomes 27 is to 1 upon 4. And this question is a to the power b plus b to the power a equals here 3 raised to minus 2 plus minus 2 whole raised to 3. Now 3 raised to minus 2 means 1 upon 3 square. 1 upon 3 square is 1 upon 9, and minus 2 whole cube becomes minus 8. So this will be 9 8 is minus 72 plus 1 becomes minus 71 upon 9. So this will be in the mixed fraction minus 7 is to 8 upon 9. So this is called mixed fraction and this is called simple fraction. Okay. तो सिंपल फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में डिवाइड करके कन्वर्ट कर सकते हो, और यहाँ पर अगर इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 9 इंटू 7 प्लस 8 अपॉन 9 कर सकते हो. तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 27 विच इज कंप्लीटेड इजिली एंड बाय ट्रिकी एक्सपेंशन और ट्रिकी एक्सप्लेनेशन.
So dear student, if you are new or my channel, so you can share the link to your friends. जिनको भी रिक्वायरमेंट है अपने फ्रेंड्स को चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो। वे भी चैनल को सब्सक्राइब करके कंटिन्यू वीडियोस को देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 28। तो 28th क्वेश्चन में क्या है देखो, इफ x इक्वल्स 10 रेज टू 3 10 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 0.0099, y equals 10 raised to minus 2 multiplied by 110, find square root of x upon y. This is very interesting. Value of x 10 cube multiplied by 0.0099 and value of y 10 raised to minus 2 multiplied by 110, find square root of x upon y. So what is the solution for question number 28? Its solution will be, since x equals 10 cube multiplied by 0.0099, 10 cube means what? It is 10 into 10 into 10, that is 1000. So 1000 multiplied by 0.0099. So if we multiply by 1000, 0.0099, so decimal replaces to the right hand side. How many places? 3 places, means 1, 2, 3. So this will be 9.9, this one. So x equal to 9.9. And value of y, since y equal to 10 raised to minus 2 multiplied by 110. So 10 raised to minus 2 means what? 1 upon 10 square. 1 upon 10 square, that is 1 upon 100 into 110. This means 110 upon 100. तो एक एक जीरो कट कर सकते हो फ्रॉम द राइट साइड. सो 11 अपॉन 10 becomes 1.1. So actual value of x is 9.9 and actual value of y is 1.1. जो यहाँ पर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू गिवन थी, वो वैल्यू को हमने सिंप्लीफाई कर लिया. दैट वैल्यू बिकम्स 9.9 and value of y here it is given in complicated form. Its simplest form is 1.1. Now what we have to find? We need to find square root of x upon y. Since square root of x upon y equals square root of 9.9 upon 1.1. So here one place of decimal, it has also one place of decimal. So decimal यहाँ पर remove कर सकते हो. So this will be 99 upon 11 equals root of 9 and square root of 9 is 3. Now see question number 29th. Evaluate x raised to half into y raised to minus 1 into z raised to 2 by 3 when x equals 9, y equal to 2 and z equal to 8. तो z equal to 8 यहाँ पर दिया और वैल्यू ऑफ x क्या दिया है? x equal to 9, y equals 2 and z equal to 8. तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं. किसको सॉल्व करोगे? these three multiplicative terms. तो यहाँ पर इनके वैल्यूज दे दिए हैं, लेकिन उनके जो वैल्यूज देने के बाद यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद उनके पावर्स या तो नेगेटिव हैं या तो फ्रैक्शंस हैं. तो चलो उनको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि इनके वैल्यूज हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. फॉर द सोल्यूशन x रेज टू 1 by 2 मल्टीप्लाइड बाई y रेज टू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई z रेज टू 2 अपॉन 3. फिर से देख लो, x raised to half into y raised to minus 1 into z raised to 2 upon 3. But value of x is what? Value of x is 9. We substitute here 9 raised to 1 by 2, 9 raised to half. Value of y 2, so this will be 2 raised to minus 1 because here y raised to minus 1 and z raised to 2 by 3, but value of z is 8, so this will be 8 raised to 2 upon 3. That is, it is equal to 9 raised to half into 2 raised to minus 1 into 8 raised to 2 upon 3. अब इसको हम क्या करते हैं? देखो, 9 can be written as 3 square. So 3 square whole raised to 1 by 2. So 2 into half, that is 2 going by 2. So this will be 3 raised to 1, that is 3 only. 3 raised to 1, that is 3. अब इसके बाद यहाँ है 2 raised to minus 1.
तो 2⁻⁻1 की वैल्यू क्या है 1/2 एंड 8⁻²/3, तो 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स है, तो 2⁻³ और 2 क्यूब, तो 2 क्यूब होल रेज टू 2/3, तो 3 इंटू 2/3, पावर इंटू पावर, डिनोमिनेटर यहाँ पर है और न्यूमरेटर 3 और डिनोमिनेटर क्या है 3, तो 3 गेट कैंसल्ड, इट इज 2 स्क्वायर बिकम्स 4, तो 3 क्यूब होल रेज टू 2/3 becomes 4. फिर से देख लो 9⁻², that is square root of 9, you can say it is 3, 2⁻⁻1, that is 1/2, and 8⁻²/3, that is 3 cube whole raised to 2/3 becomes 4. Now its simplest form here, 2 2 4, कैंसिल कर सकते हो, तो रिमेनिंग टर्म 3 इंटू 2 विल बी 6. इस तरह से मैं सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या आ जाता है 6 ओनली. अब देखो क्वेश्चन कैसा दिया, x रेज टू हाफ, y रेज टू -1 एंड z रेज टू 2/3 when x equal to 9, y equal to 2 and z equal to 8. So substituting these values here and simplify by indices property, then we get its answer is 6. और ये पॉजिटिव आंसर है +6 यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा आंसर यहाँ पर मिल गया, और यहाँ पर सभी क्या थे फ्रैक्शंस में और या तो नेगेटिव. अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 30, इफ x रेज टू 4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब. देखो यहाँ पर क्या है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 एल्जेब्रिक टर्म्स, और वो भी 3 एल्जेब्रिक टर्म्स कैसे दिए गए हैं, x रेज टू 4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब. तो x रेज टू 4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब इक्वल्स 49,392. 49,392. Find x, y and z where x, y and z are different positive integers. इसका मतलब ये है कि हमें जो यहाँ पर x, y, z के वैल्यूज आएंगे वो तीनों वैल्यू डिफरेंट और पॉजिटिव होने चाहिए. जैसे मान लो कोई वैल्यू है 5, कोई है 6, कोई है 7. ऐसा नहीं कि x एंड y बोथ आर सेम वैल्यूज एंड इट इज इक्वल टू 3. ऐसा नहीं बोल सकते कि x के वैल्यूज 5 आए हैं, x और y के वैल्यूज 5 हैं और z का वैल्यू है 7. तो डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट इज तीनों वैल्यूज डिफरेंट होने चाहिए. तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं कि हमारा मेन क्वेश्चन क्या है और उसको हम एक्सपैंड या एक्सप्रेस कैसे करते हैं. तो देखो x रेज टू 4, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर x रेज टू 4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब इक्वल्स 49,392. नंबर एक बार रीचेक कर लो, 49392, 49392 सेम है दोनों नंबर, 49,392, 49,392. तो अभी जो 49,392 है इसका हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन. इसके हमें सभी जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमें सब प्राइम फैक्टर्स चाहिए. तो अब आजकल सबसे मेन डिफिकल्टी है कि हाउ टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ बिग नंबर्स. जैसे ही बिग नंबर्स आते हैं स्टूडेंट स्किप कर देते हैं क्वेश्चन को या तो रॉन्ग करके आते हैं. तो सबसे पहले आइए चलते हैं देखते हैं कि हाउ विल यू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ बिग नंबर और अ स्मॉल नंबर. कोई भी नंबर हो रूल विल बी सेम. तो आइए देखते हैं कि इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, सबसे पहले वो प्राइम फैक्टर्स का वैल्यू क्या है और रूल क्या है. फर्स्ट यू शुड नोट डाउन द गिवन नंबर 49,392. ये हो गया अपना 49,392. अब ये देखो इसका लास्ट डिजिट मींस यूनिट्स प्लेस क्या है इवन. इवन में भी क्या है 2. तो इवन नंबर हो या जीरो हो, इवन नंबर कोई भी जैसे 2, 4, 6, 8 या 0, तो दैट नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 2. ओके, तो हम सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं और जो भी इनका कोसे 2 से डिवाइड करेंगे किस नंबर को, इसको, जो भी कोसेंट आएगा उसको हम यहाँ डाउनवर्ड नोट करते हैं. इन केस एक चीज और बता दूं, अगर कोई स्टूडेंट को ऐसा ओरली डिवीजन में यहाँ पर नहीं जमेगा, नहीं पॉसिबल है, नॉट अंडरस्टैंडिंग, सो यू कैन डिवाइड ऑन द रफ वर्क. रफ पेज पर इसको सेपरेटली डिवाइड करके यहाँ पर कोसेंट लिख सकते हो. तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको 2 से डिवाइड करना. हेयर 2 एंड इट इज 49392. तो देखो 2 2 जा 4, फिर यहाँ हो गया 2 4 जा 8 एंड 1 रिमेनिंग दैट इज 1 3.
तो 1 3 2 6 जा 12, फिर ये हो गया 1 रिमेनिंग, यहाँ पर 1 9 दैट इज 19, सो 2 9 जा 18, फिर से 1 रिमेनिंग है तो यहाँ पर 1 एंड 2 दैट इज 2 6 जा 12। तो इस तरह से ओरली डिवाइड करो या उसी को रफ वर्क पर डिवाइड करके यहाँ पर कोसेंट पूरा का पूरा एंट्री करना है। ठीक है, तो ये हमें मिल गया 24,696 मीन्स हाफ ऑफ 49,392 बिकम्स 24,696। अब भी देखो ये नंबर यूनिट्स प्लेस पर क्या है, इवन 6 है, तो इट विल बी डिवाइडेड अगेन बाई 2। चलो फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 रिमेनिंग एंड 1 6 हियर बिकम्स 16 दैट इज 2 8 जा 16। तो अब ये आ गया, अगर हम लोग इसको फिर से 2 से डिवाइड करते हैं या इसका हाफ करते हैं तो क्या मिलता है 12,348। अगेन इट्स यूनिट्स प्लेस इज 8 दैट इज इवन नंबर, सो इट विल बी डिवाइडेड बाई 2। तो फिर से डिवाइड करो 2 से, 2 6 जा 12, अब यहाँ आ गया 3, 2 1 जा 2, 1 एंड 4 बिकम्स 14 दैट इज 2 7 जा 14 एंड 2 4 जा 8, तो ये हो गया 6,174। तो इफ 12,348 डिवाइड्स बाई 2 we get 6,174. Now it will be again divided by 2. So 6,174 divides by 2 we get here 3,087। यहाँ पर देखो 2 3 जा 6, अभी 1 में 2 से नहीं डिवाइड कर सकते तो 0 जा ले जाओगे, फिर 0 क्वोशेंट आएगा, उसके बाद 7 डाउन होगा, फिर 2 8 जा 16 और फिर से आ गया 1 रिमेनिंग एंड 4 दैट इज 14, तो 2 7 जा 14, ये हो गया 3,087। नाउ इट्स यूनिट्स प्लेस इज 7 विच इज ऑड नंबर, तो कोई भी ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता। इसके लिए अब हमारा 2 का जो सीरीज है, देखो 2 2 2 2 2 कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 टाइम्स हमारा ये 2 का फैक्टर यहाँ पर आ गया 2 4 टाइम्स, तो ये हम इसको अलग लिखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं कि ये नंबर किससे डिवाइड होता है। तो देखो सम ऑफ द नंबर्स, एक ट्रिक भी है यहाँ पर कि 3 + 0 + 8 + 7 becomes what, 18, right? 18, so 18 is divisible by 3। अगर ये 18 आया तो ये किसके टेबल में आता है, 3 से, तो ये होल नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए बड़े नंबर हैं तो उनमें टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू शुड फॉलो द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर द प्राइम नंबर्स। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू ये हमें मिल गया कि ये होगा 3087। तो 3087 डिविजिबिलिटी टेस्ट से मिला, इट डिवाइड्स बाय 3, तो इसको हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, तो यहाँ 2 रिमेनिंग और ये हो गया 7, तो 27 हो जाएगा, और 3 9 जा 27। तो इस तरह से हमें 3087 डिवाइड बाय 3 करके मिला 1029 दैट इज 1029। नाउ ऐड दिस नंबर अगेन, क्योंकि अभी देखो डायरेक्टली नहीं मालूम पड़ेगा, तो 3 हमने डिवाइड करके लिया है तो 3 दिख रहा है। जब भी कोई न्यू नंबर आएगा सामने तो ये प्लेस क्या होगा, ब्लैंक होगा, एम्प्टी होगा, और हमें सोच के लिखना है कि ये 1029 किससे डिवाइड होगा, तो वहां पर प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट के सामने। इसके लिए ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से समझ लो, और इन केस यू हैव एनी डाउट फॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन मेल। So it is 1029. So it now 9 + 2 11, 11 + 0 11, 11 + 1 12। देखो 12 भी 3 के टेबल में आता है, तो होल नंबर मीन्स 1029 डिवाइड्स बाई 3। तो चलो 3 से इसको वापस डिवाइड कर देते हैं, तो 3 3 जा 9, यहाँ पर 1 रिमेनिंग दैट इज 1 2, 12 हो गया, 3 4 जा 12 और ये 3 3 जा 9। क्योंकि अब ये 1 बाय 1 एक एक डिवाइड करो, या तो रफ वर्क पर डिवाइड करो, हमारे पास 2 ही वे होते हैं, या तो हम ओरली डिवाइड करके लें अगर कर सकते हो, और अगर यहाँ पर ओरली डिवीजन पॉसिबल नहीं है, मिस्टेक होने का चांसेस ऐसा लगता है मुझे कि रॉन्ग हो सकता है, तो वो हो सकता है वाला ऑप्शन छोड़ दो। डायरेक्टली यू शुड डिवाइड ऑन द रफ पेज, ऑन द सेपरेट पेज एंड राइट डाउन हियर डायरेक्टली कोसेंट्स। तो चलो इसको हमने 3 से डिवाइड कर दिया, अब ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 3 जा 9, 1 2 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, ये हो गया 343।
तो अब ये आता है 3, लेकिन क्या ये अब 3 से डिवाइड होगा वो चेक करना है। देखो 3 + 4 7 3 10, सम कितना आया 10। तो 10 3 के टेबल में नहीं आता। नाउ 343 विल नॉट बी डिवाइड बाई 3, और 2 से तो होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इसके यूनिट्स प्लेस पर क्या है, ऑड नंबर। तो अब ये नंबर जो है देखो 343 है, तो इस नंबर को हम लोग देखो फर्स्ट 2 का भी सम 7 है और लास्ट 2 का भी सम 7 है। तो यहाँ पर हम लोग पूरे नंबर को टोटल कर लेते हैं कि ये नंबर हमारे 3 + 4 + 3 यहाँ पर है 10, और वैसे भी ये स्मॉल नंबर्स में आ जाता है, तो इजिली यू कैन से इट डिवाइड्स बाई 7। तो 7 4 जा 28, 6 एंड 3 दैट इज 63, 7 9 जा 63। क्योंकि देखो 343 मोस्टली अपने रनिंग फैक्टर्स में भी आता है, और इसको ये क्या है 7 का क्यूब, मतलब ये 7 के फैक्टर्स इसमें 3 टाइम्स इंक्लूड है। तो 7 से डिवाइड किया हो गया 49, और फिर 49 को 7 से डिवाइड किया हो गया 7, और 7 को 7 से लास्ट डिवाइड कर दिया हो गया 1। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर मिल गए प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ये हमें प्राइम फैक्टर्स मिले किसके, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 49,392, ये सभी नंबर्स। तो अब जो सेम नंबर्स हैं उनको हम एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बिकम्स 2⁴, और उसको इंडेक्स के फॉर्म में लिखना है। ऐसा नहीं कि ये नंबर मल्टीप्लाई करके 16 आता है, तो डू नॉट राइट 16 हियर, यू हैव टू नोट डाउन इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स। कितने टाइम्स है 2 यहाँ पर, 4 टाइम्स, सो वी राइट हियर 2⁴। नाउ 3 into 3 only 2 times, so this will be 3 square. And here it is 7 into 7 into 7 3 times, that is 7 cube. So 2⁴ into 3 square into 7 cube. They are the prime factors in terms of indices of 49,392. So they are prime factor of this number. Now in the left hand side it is given x⁴ into y square into z cube. तो अब ये कंपेयर करो जरा, देखो x⁴ is 2⁴, y square is 3 square, z cube is 7 cube। देखो पावर्स बोथ साइड मैच हो रहे हैं। देखो यहाँ पर इंडेक्स क्या है 4, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर है 3। इसका मीनिंग ये है अगर इनके इंडाइसेस सेम है और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ द 3 वेरिएबल्स है, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 प्राइम फैक्टर्स है, 2 3 एंड 7। तो अगर पावर सेम होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उनका बेस का कंपेयर करेंगे, और अगर बेस सेम होते हैं तो हम पावर्स को कंपेयर करते हैं। तो चलो x⁴ इक्वल टू 2⁴, ठीक है, पावर पावर कट गॉन, तो x इक्वल टू 2। ठीक है, इसके लिए मैंने यहां लिख दिया कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब वो कंपेयरिंग में क्या है वो मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कंपेयरिंग द बेसिस बिकॉज इंडाइसेस आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स। सो x इक्वल्स 2। अब यहां देखो y स्क्वायर है, यहाँ है 3 स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर गॉन, y इक्वल्स 3। और ये z क्यूब, तो z क्यूब है तो यहाँ पर क्या है 7 क्यूब, तो हियर 3 3 गॉन, दैट इज z इक्वल टू 7। तो वैल्यू ऑफ z इज 7। तो इस तरह से हमें यहाँ पर मिल गया x इक्वल टू 2, y इक्वल्स 3 एंड z इक्वल्स 7। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये अगर हमें यहाँ पर वैल्यूज ऑफ x y z फाइंड करना है तो हमें कैसे फाइंड करना पड़ेगा। और दूसरी चीज यहाँ पर देखो, अभी तो यहाँ पर है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है तो इसी क्वेश्चन को समटाइम्स पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड। तो देखो x इंटू वाई इंटू जेड अगर पूछा जाएगा, न्यू क्वेश्चन बनेगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा, दैट इज 42। और समटाइम्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। तो स्टूडेंट को और भी कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन लगता है कि हमें तो गिवन है, देखो क्योंकि तब ये सब सोल्यूशन सामने नहीं होगा, ना तो ये प्राइम फैक्टर की लिस्ट होगी और न ही ये सोल्यूशन होगा, ओनली क्वेश्चन विल बी देयर। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z विच आर डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स एंड आल्सो फाइंड
द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये लगता है कि x रेज टू 4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब इज 49,392 गिवन है। सो हाउ विल यू फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड? इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो एक बार ऐसा डायरेक्टली पढ़ते हो, सडन सामने आता है, तो ऐसा लगता है कि दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, you have to solve by same way and then add these three variables values. तो x plus y plus z becomes 2 plus 3 plus 7 becomes 12। या कभी इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y माइनस एक्स अपॉन जेड, ऐसा भी आ सकता है। तो y माइनस एक्स इज 3 माइनस 2 दैट इज 1 अपॉन जेड दैट इज 7, 1/7। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी वैल्यू इसमें पूछी जा सकती है। ऐसा नहीं कि हमेशा फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, दे कैन चेंज, दे कैन ट्विस्ट द क्वेश्चन। सो यू हैव टू सॉल्व योर ट्विस्टिंग क्वेश्चन बाय ट्विस्टिंग वे, मीन्स बाय ट्रिकी वे। इफ यू नो द ट्रिक you can solve maths in seconds. So follow the trick, learn the trick, practice the different types of the questions। और इसी तरह के और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए और चैप्टर कंप्लीट करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू।